So today we will discuss the next important operation on the queue data structure, that is traverse operation. And traverse means visiting all the data items in the queue. Okay. So we will start from the front element of the queue and go till the rear element of the queue. So visit from the front till the end. So that is traversing operation. So for traversing, also you have to first of all check whether the queue is empty or not. If the queue is empty, then there is no meaning of traversing. Yes or no? So you have to check that first, whether the queue is empty or not. If the queue is empty, then you just print an error message that queue is empty, so we cannot traverse. If the queue is not empty, then we can traverse starting from the front to the rear, because front is the first element. Front is a pointer that is pointing to the first element of the queue, and rear is the pointer that is pointing to the last element of the queue. So you have to traverse, visit from the front element to the rear element. So this is known as traverse operation in the queue, in the linear queue, right? Any question? Hello, sir. No, sir. Hello, sir. Okay. So Hello, this is sir. this. You have any question? Anyone Yes, asking sir. question? Yes, Yeah, sir. tell, Yes, sir. tell, Am I tell. audible? You are audible, Sir. but your voice is not clear. Speak loudly. Okay, sir. Wait, sir. Wait, sir. Yeah, yeah, tell. I will ask this 5 minutes of मतलब Okay, 5 मिनट fine. के बाद मैं Okay, fine. Okay. So this is the C function to traverse a queue. So this is the function name LQ. LQ stands for linear queue, right? So LQ traverse, and then one variable declared int I, and then you can see here I'm checking whether the queue is empty or not. So you know that the condition for queue empty is if the front value is equals to -1, that means queue is empty. So I'm checking here, and then if the queue is empty, then what to do? Just print this message, error message that the queue is empty. So printf queue empty and then return. So return means it will exit from the program. Okay, so if the queue is empty, then stop here and exit from the program. So return statement is used for that purpose, right? And if this is not satisfying, if front is not equals to -1, that means there are some elements in the queue, so we can traverse all the elements. And I told you that in traversing, what we do, we start from the front and go till the end, till the rear. So you see here, for I equals to front, I less than equals to rear, okay, then I plus plus. So starting from the front, we are going till the rear, okay, and the front value is incremented by 1 each time. And here you can see I'm accessing the values of the queue. So printf %d qi. I'm accessing and just printing the values of the queue, right? So this is the queue traverse operation, and this is the C function for that, right? Any question? हेलो सर am I audible now? Yes, you are audible. Yeah, tell. Yes. सर जो ट्रैवर्स फंक्शन में भी हम एक्सेस करके प्रिंट कर रहे हैं सब एलिमेंट्स को और देखो डिस्प्ले मेरी डिस्प्ले बात सुनो फंक्शन मेरे, हाँ बोलो बोलो बोलो। डिस्प्ले फंक्शन में भी हम सेम ही कर रहे हैं तो सर डिफरेंस मतलब क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। ट्रावर्स का मतलब ये है कि विजिट करना, विजिट करने को ट्रावर्स बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर लिया। ट्रावर्स का मतलब ये नहीं कि प्रिंट करना, उसका मतलब ये है खाली विजिट करना। तुम प्रिंट ना करो, डोंट प्रिंट हियर, जस्ट विजिट। Starting here from you see for I equals to front, I less than equals to rear, you can increment some value I equals to a plus 1, and then you can just add when you reach the rear value, right? Okay, then you can print a message that we have completed traversing all the, we have visited all the elements, right? So traversing means visiting all the data items. Okay, and after visiting you can do anything to that data item. You can print there, or you can delete, or whatever you want you can do, right? You can add some data to existing data item also. So traversing means visiting only. And in all the programs that I have shown you, I have printed the value while traversing. Okay, so after traversing you can process means you can do anything, right? And that process operation I am doing here, I am printing just. Okay,
And for your question, what's the difference between display and print? There is nothing, no difference between display and print, same thing. And traverse is different, display is different, right? Display or Yes, print sir. means, Yes, sir. display, print means same thing, displaying. But traverse means accessing all the data items. I mean visiting, just visiting. Yes, sir. You मतलब getting me? सिर्फ विजिट विजिट मतलब खाली करने चेक को बोलते हैं, कर, हाँ फिर उसके बाद प्रिंट करना नहीं करना वो हाँ, वो हमारे तुम्हारे ऊपर ऊपर है। डिपेंड करता है, लेकिन मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ सेफ्टी यस के सर, लिए, यस। मतलब कि हाँ मैंने विजिट किया इसलिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो अगर एग्जाम में आता है ट्रैवर्स करने, तुम यही डिस्प्ले या प्रिंट कर लो, ठीक है ना? यस अगर सर, एग्जाम यस। में आता है कि ट्रैवर्स करने के लिए क्वेश्चन, तो यू कैन प्रिंट द एलिमेंट, ओके? So you can either यस। give the function name traverse or print traverse print or something like that. You can give. Or just give traverse also, right? यस सर, थैंक यू सर। Okay. So now, so we discussed queue, and we also discussed the insertion and deletion operations on the queue. We also discussed traverse operation of the queue. Okay. So now we'll discuss limitations of queue. Okay, limitation means what are the disadvantages of queue. We'll discuss now. So we know that in a queue there is a front, there is a rear, and deletion is done at the front end, and the insertion is done at the rear end. And if we are implementing queue using a array, then we have to define size of the array. This is the limitation of array, that before using array you have to define its size. So that is the maximum size of the array, which is the maximum size of the queue in this case. So we are doing that. So you can see here one example. You can see this is the queue, and this is implemented using the array. And here total 8 elements can be stored in this queue. You can see the starting index is 0 and the last index is 7. So total is how many? Total 8 number of data items can be stored in this queue. And here the queue is full. You can see all the data are there in the queue. Total 8 data are there: 3, 4, 6, 7, 7, 9, 8, and 12 are the data items. And front is at the 0th index. Front is pointing to this first element, and rear is pointing to the last element here. Now this is the case where queue is full, isn't it? This is queue full now. And the condition for queue full, you can see this is another condition of queue full, that whenever the front value is the 0, whenever front is 0 and rear is the maximum size of the queue minus 1, that is n minus 1. When rear is n minus 1 and front is 0, at that time also you can say that the queue is full, right? So this is now queue is full, okay, isn't it? But previously we were saying only we were taking only one condition for checking the overflow condition. Can you tell me what was the condition? Queue full condition. Rear equals to size minus 1. Yes, rear equals to size minus 1 we were taking for checking the whether the queue is full or not. Okay, but that is not sufficient. Okay, we have to consider this also. Okay, why? Let me tell you that. So suppose we have this situation now. Okay, front is pointing to this first element and rear is pointing to this last element. Okay, and these are the indexes, these are the values. And suppose I want to delete these three first element. So in deletion, what happens? We'll access this 3, delete this, and then front value will be incremented. Now front will point to this. Again, I deleted this 4. Okay, then front will again be incremented, and again I deleted this 6. So now front will be incremented. That will point to this, right? Now I deleted these 3 items. 3, 4, 6. I deleted. Now front is pointing to this third index. 3 index. Okay, in total 4. I mean 3 index. It is pointing. So front is pointing to this 7 element. Okay, data item 7 and its index is 3, right? Rear is here 7. Okay. Now tell me, is this queue full now? Is this No, queue sir. full now? No, sir. Huh? No, sir. No, queue is not full. But previously we were checking if the rear value is equals to n minus 1, then we were saying that queue is full. Yes or no?
We were saying that n minus 1 or not. Is 3, okay, index 3, and here is 7 because we deleted these 3 elements. So now q is not 4 because these 3, after deletion, these 3 locations are vacant. Okay, q is not 4. Okay, now you see, now at this point, if we want to insert a new data item, can we insert now? Can you tell me No, sir. why no? Sir, we Sir, can. Tell why no? बोलो. R is जो रेयर है वो पॉइंट कर रहा है लास्ट इंडेक्स में और सर हाँ साइज ऑफ द अरे तो पहुंच चुका है. good. So the rear is pointing to the last element now, and there is no extra space or vacant space in the queue. Okay, and we cannot insert now because I have already told you that insertion is done only at the rear end. It cannot be done at the front end in a linear queue. This is a linear queue, right? So insertion can only be done at the rear end of the queue. Okay, and here the rear is pointing to the last element. Okay, the last index it is pointing, so there is no space available, so you cannot insert. But the problem is here we have deleted 3 items and these 3 locations are vacant. Okay, so even if there are some places, vacant places are there, but still we cannot insert. This is the limitation of a linear queue, right? Are you getting me? This is the limitation of a linear queue. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes. And in case of linear queue, while insertion operation, okay, let me check what we have written. Yes, linear queue insert, LQ insert. If rear equals to n minus 1, then print queue is overflow. Yes, this is true. Tell me, it is correct or not? Should I write here front equals to 0 and rear equals to n minus? Should I write that in case of linear queue? Tell me, students. Is it correct or not? Tell me. This is insertion algorithm, right? And this is the Yes, sir. C function. Yes, sir. It's correct, na? Yes, sir. Shall I write front equals to 0 condition? No, sir. Why? सर लीनियर क्यू है तो एक हाँ, लाइन good, से good. ट्रैवर्स करेगा. Good, good. So it's a linear queue. So even if there is some vacant place, we cannot insert. Okay. So only this rear condition is sufficient. This rear condition is enough to tell that whether the queue is full or not. Right? Okay. And this is the drawback of linear queue. I mean the limitation of linear queue. Okay. Okay. So can you tell me any solution to this problem? I mean, how can we solve this issue of a linear queue? Can anyone tell me any solution? सर अगर हम Any- पीछे से ट्रैवर्स करें तो ट्रावर्स करोगे, इंसर्ट करोगे? मतलब सर रियर से हम अगर ट्रैवर्स करें फ्रंट तक तो अच्छा, इधर से करोगे, पीछे से? यस सर. माने तुम बोल रहे हो कि इधर इंसर्ट करोगे, इधर डिलीट करोगे, ये बोल रहे हो? नहीं, Yes, इधर sir. इंसर्ट करोगे, इधर डिलीट करोगे, उल्टा यस करना सर. बोल रहे हो? हाँ सर, जहाँ पर खाली है उस सोर्स से हम इंसर्ट करेंगे. नहीं, अगर इस तरफ से इंसर्ट करोगे तो इस तरफ एक तरफ से इंसर्ट, एक तरफ से डिलीट तो करोगे ना? यस सर. हाँ, तो वो तो सेम हो जाएगा ना. इस तरफ से तुम अगर इंसर्ट करोगे, इस तरफ से डिलीट करोगे, तो डिलीट जब इस तरफ से इस तरफ करते हो के करते करते आओगे तो इधर भी तो खाली रह जाएगा ना. सर पहले हम चेक करेंगे कि सोर्स वो खाली है, लाइक फ्रंट और रियर दोनों एक वैल्यू इंडिकेट करेगा, उससे हम चेक करें वहां पर वैल्यू एम्प्टी है या नहीं. अगर वो ठीक है, आई एक्सेप्ट योर सॉल्यूशन. सो वी कैन डू डिफरेंट, वी कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स. ओके, सो
that can be done. So we have different techniques to solve this problem. Okay, so one of the technique is your सर्कुलर क्यू. ओके, सर्कुलर क्यू में क्या होता है, देखो ऐसे रहता है, देखो 0 0. हमने क्या किया, ये वाला जो है ना, इसको सर्कल की तरह हमने इसको कर लिया. पहले क्या था, ऐसा था 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसा था. ठीक है ना. तो अगर मान लो यहाँ से हम डिलीट किए और लेकिन यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट है और लास्ट ईयर यहाँ को पॉइंट कर रहा है, तो नॉर्मल लीनियर क्यू में हम इसको यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते थे. लेकिन अगर हम एक काम कर सकते हैं, इसको सर्कल में बना लेते हैं. ठीक है ना. मतलब इसमें क्या होता है, अगर ये फुल है जो तुम बोल रहे हो ना, वही कर रहे हैं इसमें. अगर ये लास्ट वाला फुल है तो हम पहले इंडेक्स में या इधर से शुरू करेंगे इंसर्शन. मेरी बात समझ रहे हो. अगर दिस इज n-1, इसका इंडेक्स क्या है, तो हम यहाँ फ्रंट से कर सकते हैं, इधर से. ठीक है, यहाँ से करेंगे. और ये जो रियर का वैल्यू है ना, देखो रियर हर घड़ी इंसर्शन रियर में ही होता है, ये याद रखो. इंसर्शन हर घड़ी रियर में ही होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये जो इसका वैल्यू है ना 4, इंसर्शन जब करते हैं तो रियर का वैल्यू तो बढ़ाते हैं ना, है कि नहीं. हेलो, जब इंसर्शन करते हैं क्या करते हैं, रियर का वैल्यू पहले बढ़ाते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं 1 and then we insert. So now suppose rear is pointing to this 4. Okay, so here in case of circular queue, what we do, this rear value will be incremented and it will point to this 0th index. फिर से पहले आ जाए, इधर इसको पॉइंट करेगा सर्कुलर मैनर में. समझ रहे हो मेरी बात. इट इज लाइक ए सर्कल, ऐसे. मतलब देखो 0 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स. अब ये 4 में जब खत्म हो गया, ये जो रियर का वैल्यू फिर से इधर इसको पॉइंट करेगा, इसको 0th इंडेक्स को. मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे सर्कल में घूमता रहेगा ये. आर यू गेटिंग मी और नॉट. हेलो. यस सर. हाँ, तो अगर ये रियर इसको पॉइंट कर रहा था अभी, ठीक है ना, लीनियर क्यू में हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन सर्कुलर क्यू में कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, देखो इन सर्कुलर क्यू पोजीशन 0 कम्स आफ्टर पोजीशन n-1. दिस इज n-1 because here 1 2 3 4 5. So size of the queue is 5, that is n is 5. Okay, now if n is 5 means what, the rear will go up to maximum n-1, that is 4. तो देखो 4 तक आया. तो यहाँ 4 तक आने के बाद, n-1 पोजीशन को आने के बाद, उसके बाद रियर किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा. वही लिखा है इन सर्कुलर क्यू, पोजीशन 0 कम्स आफ्टर पोजीशन n-1, राइट. दिस पोजीशन 0 कम्स आफ्टर दिस पोजीशन. तो रियर के वैल्यू को यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं, और जब बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा. ठीक है ना. इसलिए यहाँ पर सर्कुलर क्यू में क्या करते हैं, हम नॉर्मल लीनियर क्यू में क्या कर रहे थे, हम रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 करते थे, उसके बाद असाइन करते थे वैल्यू, क्यू रियर इक्वल्स टू डेटा करते थे, है कि नहीं. तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये 4 से 0 को कैसे पॉइंट करेगा ना, हम ऐसे करते हैं. देखो 4 + 1 करना है, ठीक है ना. रियर अभी कितना है, 4 है, तो 4 को इंक्रीमेंट करेंगे 1. सो 4 + 1 कितना हो गया, 5. 4 + 1 कितना, 5 को मॉड ऑपरेशन करना है, मॉडुलर रिमाइंडर निकालना है. 5 मॉड साइज ऑफ द क्यू. साइज के इसका कितना है, 5. तो ये 4 को हमने 1 बढ़ा दिया, 5 हो गया. तो 5 मॉड 5 कितना होगा, बताओ मुझे. 0 हो गया. अब रियर का वैल्यू 0 हो गया. देखो इधर आ गया, क्यू रियर इक्वल्स टू, यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं ना, क्यू रियर, क्यू 0. क्यू रियर मतलब रियर भी कितना हो गया, 0, क्योंकि हमने 5 मॉड 5 कर लिया, 0 हो गया रियर का वैल्यू. रियर इक्वल्स टू 5 मॉड 5, 0 हो गया. सो नाउ क्यू रियर इक्वल टू 0. सो क्यू 0 फिर से असाइन कर लो यहाँ पर. ठीक है. मान लो फिर से और एक एलिमेंट इंसर्ट करोगे, तो क्या करोगे, रियर का वैल्यू जितना है उसमें फिर से 1 ऐड करोगे. करने के बाद फिर से मॉड 5 करोगे. 5 क्यों, क्योंकि साइज ऑफ द क्यू. सो 0 + 1 कितना हो गया, 0 + 1
वन 1 mod 5 कितना हो गया? 1। तो रियर का वैल्यू 1 हुआ। फिर से असाइन कर लो क्यू रियर मतलब Q1 इक्वल्स टू डेटा यहाँ असाइन कर सकते हो। फिर से और एक एलिमेंट मान लो कि इंसर्ट करोगे, क्या करोगे? इसमें फिर से 1 ऐड करो। 1 + 1 कितना हो गया? कितना? 2 mod कितना करेंगे? 5 कितना? 2 mod 5 is how much? 2। देन यू कैन इंसर्ट Q2 इक्वल से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? हेलो, यस सर। तो अब मान लो हम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पर इंसर्ट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी और कर सकते हैं क्या इंसर्ट? नो सर। फुल हो गया, अभी फुल हो गया। ठीक है, अभी फुल हो गया। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। देखो ऐसे होता है 0 1 2 3 4 के बाद फिर से 0 का आएगा इंडेक्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। तो मुझे बता सकते हो कि इसमें फुल जो ये सर्कुलर क्यू फुल है कि नहीं, उसका कंडीशन क्या हो सकता है? बताओ मुझे, कोई बताएगा? सर्कुलर क्यू का फुल कंडीशन क्या है? बोलो। हम यहाँ पर रियर का रियर यहाँ हो गया, ठीक है ना, और फ्रंट कहाँ है? इस केस में फ्रंट कहाँ है बताओ मुझे? ऑलरेडी यहाँ 3 में है ना फ्रंट, देखो फ्रंट 3 है, और रियर कहाँ तक? यहाँ तक आ गए सर्कुलर मैनर में। बताओ मुझे, हम जब यहाँ तक आ गए, फ्रंट कितना है, रियर कितना है? हाँ, फ्रंट कितना है अभी, रियर कितना है अभी यहाँ पे? 2। और फ्रंट कितना है अभी? 3। तो ये अभी तो फुल हो गया ना, क्यू फुल हो गया। तो मुझे बताओ ये क्यू फुल का कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिखें बताओ? कब बोल सकते हैं हम कि सर्कुलर क्यू फुल है? कब बोल सकते हैं? बोलो, कब बोल सकते हैं सर्कुलर क्यू फुल है? कोई बताएगा? देखो, इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू कैसे करते हैं? रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n, रिमाइंडर ऑपरेटर n क्या है? साइज ऑफ द क्यू, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? सी क्यू रियर इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे करते हैं, ठीक है। रियर फ्रंट, हाँ क्या कंडीशन होगा? रियर इक्वल टू फ्रंट। नहीं, रियर इक्वल टू फ्रंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ लुको। अच्छा ये वाला देखो, ये समझ में आया ना, इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू। ये इसका कैसे इंसर्शन करते हैं, देखो, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 रिमाइंडर ऑपरेटर देन n, उसके बाद सी क्यू मतलब सर्कुलर क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू रियर, सी क्यू रियर इक्वल्स टू वैल्यू, यहाँ पर असाइन कर लिए, ठीक है ना। अब ये देखो ओवरफ्लो कंडीशन, देखो ओवरफ्लो कंडीशन इन सर्कुलर क्यू इज इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n देन CQ is overflow। ये समझ में है? ये समझ में है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, हमने यहाँ इंसर्ट किया, ऐसे था। अब इस केस में मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ये है। अभी मुझे बताओ इस केस में फ्रंट कितना है, रियर कितना है, बताओ मुझे। फ्रंट 3, रियर 4। फ्रंट 3 और रियर 4 है, ठीक है, ठीक है ना। अभी फ्रंट 3 है, रियर 4 है। अच्छा मैं अभी एक इंसर्ट कर रहा हूँ, नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ये सर्कुलर क्यू है, याद रखो। मैं अभी नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, एक डेटा मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। बताओ मुझे अभी फ्रंट कितना, रियर कितना? बोलो, फ्रंट कितना, रियर कितना, बताओ मुझे। सर रियर 0, हाँ, फ्रंट 3। हाँ फ्रंट गुड। 3। फ्रंट 3 तो उतना ही है। फ्रंट चेंज कब होगा? जब डिलीट करोगे तभी चेंज होता है फ्रंट, नहीं तो फ्रंट जहाँ वहीं रहेगा, ठीक है ना। हमने इंसर्ट किया इसलिए रियर 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वैल्यू कुछ डिलीट हमने इंसर्ट कर लिया। अगर मैं फिर से और एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, बोलो
अभी रियर कितना फ्रंट कितना बोलो? सर रियर 1 फ्रंट 3। ओके, फिर और एक इंसर्ट कर रहा हूँ। रियर 2 फ्रंट 3। रियर 2 फ्रंट 3। रियर 2 फ्रंट 3। अच्छा, फिर और एक इंसर्ट करूंगा अभी। नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा ना। यस सर। तो अभी मुझे बताओ फ्रंट कितना है, रियर कितना है? फ्रंट 3 रियर 2। फ्रंट 3 रियर 2, मतलब फ्रंट रियर से बड़ा है कि नहीं? यस सर। सो कितना बड़ा है? फ्रंट इक्वल टू 1। रियर प्लस 1 है, रियर प्लस 1 है कि नहीं? फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 है क्या? अच्छा। हाँ, यस सर। यस सर। सो वही तो लिखा हूं मैं, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1, मॉड एन लिखना पड़ता है इसलिए क्योंकि हम इधर से अगर यहाँ पर मान लो इधर होगा तो सर्कल मैनर में आ रहे हैं ना, इसलिए मॉड एन करना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, सर तो ये वही हमें कंडीशन इसमें 2 कंडीशन यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? ओवरफ्लो के लिए? यस सर। नहीं, 2 क्यों, एक में हो जाएगा। सर जो रियर इक्वल साइज -1 वो वाला। हाँ वो भी, वो हाँ वो करेंगे, लेकिन वो भी तो हो जाएगा क्योंकि देखो नहीं, रियर इक्वल टू साइज -1 क्यों करोगे? वैसा तो नहीं है ना। मान लो रियर अभी यहाँ पर है, ये तो साइज -1 है ना। सर अगर हम फास्ट से इनपुट करेंगे तो? मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। सर अगर हम मतलब फ्रंट 0 फ्रंट -1 रियर -1 से इनपुट करेंगे हाँ, तो उसमें तो हमें ये वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा ना, रियर इक्वल टू अच्छा साइज। मान लो फ्रंट -1 है, रियर -1 है, सर वो हो गया तुम्हारा अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब क्यू एम्प्टी है। सर नहीं, हम उससे वहां से इनपुट करेंगे। हाँ, इनपुट किए तो पहला वाला तुम्हारा रियर हो गया कितना, 0 हो गया, और फ्रंट भी 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली तुम्हें फ्रंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द माने एलिमेंट जो होता है ना उसको पॉइंट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है क्यू में, जो पहला वाला एलिमेंट होता है फ्रंट, उसी को ही पॉइंट करेगा हर घड़ी। तो मान लो इनिशियली तुम्हारा क्यू एम्प्टी था, एम्प्टी मतलब क्या, फ्रंट भी -1 रियर भी -1, तो तुमने एक इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करो मतलब रियर बड़ा हो गया, रियर 0 हो गया, और फ्रंट को भी एक 0 करना पड़ेगा, फ्रंट को भी इनिशियली एक बढ़ाना पड़ेगा। तो एक डेटा इंसर्ट किया मतलब फ्रंट 1 रियर भी, फ्रंट 0 रियर भी 0 हो गया, ठीक है ना? अब बताओ। तो उसके बाद हम इनपुट कर कर करके हम रियर 4 तक जाएंगे। हाँ, रियर 4 आ गया, फ्रंट 0 में है। सर हाँ उस बोलो। टाइम में तो स्टैक फुल मतलब क्यूब फुल होगा ना, हाँ फुल है। तो वो वाला कंडीशन। वो इसमें नहीं हो रहा है क्या, देखो इसमें नहीं हो रहा है क्या, बताओ मुझे। उस टाइम में क्या होता है, फ्रंट 0 है और रियर कितना है? इस कंडीशन में होगा। उस टाइम में फ्रंट कितना है, 1 0 है, और रियर कितना है बताओ मुझे? 4। 4 है। तो यस सर इसमें नहीं हो होगा। रहा है क्या? यस इसमें सर। नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हैं? यस सर। हो रहा है सर। हो रहा है ना, क्योंकि इसमें 1 ऐड करो, 4 में 1 ऐड करो, कितना हो रहा है? 5 5 मॉड n कितना हो रहा है? 0। तो हो गया, फ्रंट 0 है कि नहीं? फ्रंट तो 0 था ना उस टाइम में। यस सर। यस सर। तो हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए तो मैंने ये मॉड n जो दिया है ना, इसीलिए मैंने दिया है। मेरी बात समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, अगर ये मॉडर्न n जो हमने दिया है, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? वो जो तुम बोल रहे हो ना कि फ्रंट यहाँ 0 को पॉइंट कर रहा होगा, रियर इसको कर रहा होगा, सही बोल रहे हो, लेकिन वो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है वो, ठीक है? सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द क्यू इज फुल एंड ओवरफ्लो का मैसेज यू कैन गेट, राइट? समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। ओके, सो क्यू इंसर्शन ये सर्कुलर क्यू उसको बोलते हैं। और सर्कुलर क्यू में देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये मॉड लेना है तुम्हें, मॉड n, मॉड मतलब रिमाइंडर ऑपरेटर, ऐसे परसेंटाइल यूज करते हो या तो फिर मॉड भी लिख सकते हो। तो इंसर्शन कैसे करते हो, पहले रियर बड़ा हो गया, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, ऐसे इधर मॉड n लिखो या तो फिर परसेंटाइल n भी लिख सकते हो, ये लिखोगे, उसके बाद सी क्यू रियर इक्वल टू वैल्यू, ओके? सी क्यू मतलब क्यू है, सी क्यू रियर वैल्यू, इट्स आर ए सी क्यू रियर इक्वल्स टू वैल्यू, ओके? हो गया इंसर्शन। और ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, इफ रियर इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 एंड रिमाइंडर ऑपरेटर n, देन प्रिंट क्यू इज सी क्यू सर्कुलर क्यू, सी क्यू मतलब सर्कुलर क्यू,
इज फुल एंड ओवरफ्लो। ओके, ये हो गया। अच्छा, वैसे ही अंडरफ्लो डिलीशन कैसे करते हैं? डिलीशन में वैसे ही जैसे लीनियर क्यू में करते थे ना, यहाँ वैसे ही डिलीशन पहले आइटम इक्वल्स टू सी क्यू फ्रंट करोगे। डिलीशन यहाँ पर डिलीशन भी फ्रंट से ही होता है यहाँ पे, ठीक है ना, डिलीशन फ्रंट से ही होता है। सो आइटम इक्वल टू सी क्यू फ्रंट कर लिए, मतलब जो फ्रंट में जो आइटम है उसको इसमें असाइन कर लिया आइटम में। उसके बाद क्या करना है, फ्रंट को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर भी वैसे फ्रंट को जो बढ़ाते हो ना, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन रिमाइंडर ऑपरेटर एंड करना है, मतलब मॉड एंड करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो गया डिलीशन के लिए। हेलो, यस सर। क्योंकि देखो अभी देखो, मान लो ऐसे ये है, ठीक है ना, इसमें अभी फ्रंट कितना है, रियर कितना है, बताओ मुझे। फ्रंट 3 रियर 4। फ्रंट 3 रियर 4 है, ठीक है। ए वन को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फ्रंट कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। 4 तो 4 कैसे होगा? ये फ्रंट 3 था, 3 प्लस 1 मॉड 5, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 मॉड 5 कितना हो गया 4, 4 4 हो गया। अच्छा ठीक है, फिर से इसको डिलीट करेंगे, इसको, ये वाला क्या हो गया, ये डिलीट हो जाएगा। और इसको बढ़ाओगे, 4 प्लस 1 मॉड 5 करोगे, तो 4 प्लस 1 कितना 5, 5 मॉड 5 कितना 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रंट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर मान लो कि तुम्हारा ऑलरेडी इसके पहले मान लो तुम अगर इंसर्ट किए होगे इधर, तो फिर से इन सारों एलिमेंट को भी डिलीट करते करते जाएगा। मान लो यहाँ पर तुमने इंसर्ट किया था पहले और कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए थे, तो यहाँ से फ्रंट इधर से इधर आ जाएगा नहीं, फिर इसको भी डिलीट कर सकते हो ऐसे, फिर इसको ऐसे कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर जो रिमाइंडर ऑपरेटर देते हैं, ठीक है ना, डिलीट जब करते हो, ये वाला डिलीशन के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। ये जो लिनियर क्यू में करते थे वैसे ही कर रहे हैं, खाली रिमाइंडर ऑपरेटर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर साइज ऑफ द क्यू, ठीक है। समझ में आया? यस सर। yes sir नाउ द अंडरफ्लो कंडीशन फॉर द सर्कुलर क्यू। सो इसमें एक ही कंडीशन तुम्हें चेक करना है, इफ front equals to -1 then CQ is underflow। okay, अगर front is equals to -1 then underflow। okay, ये है तुम्हारा सर्कुलर क्यू का अंडरफ्लो कंडीशन एम्प्टी। और ऐसे देखो यहाँ पर जो हम डिलीट कर रहे थे, ठीक है ना, पहले इन दोनों को डिलीट किया, उसके बाद मान लो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, सबको डिलीट कर लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था बताओ, रियर अभी कितना था, रियर यहाँ था, है कि नहीं, रियर यहाँ पे था और फ्रंट कहाँ पे था, फ्रंट यहाँ पे था, ये इधर आ गया। तो जब भी देखोगे फ्रंट रियर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, डिलीट करने के बाद, तो वहां तुम्हें ये दोनों को, फ्रंट को रियर को -1 इनिशियलाइज करना है। जब एम्प्टी हो रहा है क्यू, तो उस टाइम में तुम्हें फ्रंट को और रियर को -1 इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमें मेंशन करना है कि क्यू एम्प्टी हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? जब भी हम पूरा क्यू को एम्प्टी कर रहे हैं तो उस टाइम में फ्रंट को -1 करना है, रियर को भी -1 करना है, ठीक है ना। समझ में आया? इसलिए जब टेस्ट कर रहे हो क्यू एम्प्टी है कि नहीं, यहाँ पर यही चेक करना है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 देन वी कैन से दैट क्यू इज एम्प्टी एंड अंडरफ्लो। क्यू मतलब सर्कुलर क्यू। ओके, एनी क्वेश्चन? सर वो कंडीशन आपने क्या बोला, जो जिसमें हम वो फिर से इनिशियलाइज करके -1 से? हाँ नहीं, मान लो तुम डिलीशन ऐसे कर रहे हो, डिलीट करते करते जा रहे हो, पूरा डिलीट कर लिए सारे एलिमेंट को सर्कुलर क्यू से, ठीक है ना, सर्कुलर क्यू से सारे एलिमेंट को तुमने डिलीट कर लिया। तो सारे एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो मतलब क्या है, उस कोई सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उस टाइम में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को रियर को -1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जब पूरा सब डिलीट कर रहे हो। समझ में? Yes, हेलो, sir.
Yes, sir. So now we will see the algorithm for insertion in a circular queue. Okay. So insertion of a new element is done at the very first location of the queue if the last location is full. This is the condition for circular queue. Okay. Now you see here circular queue function name is CQ for circular queue. So CQ insert. Okay. And then you see इसको हम पास क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू पास कर रहे हैं. एन क्या है बताओ मुझे. ये है तो हाँ एन है टोटल साइज. और ईयर तो पता है तुम्हें क्या है, फ्रंट क्या है तुम्हें पता है, आइटम क्या है वो भी तुम्हें पता है. आइटम क्या है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. Yes, sir. ओके. सो इस एल्गोरिथम को हम इनपुट क्या दे रहे हैं, ये क्यू दे रहे हैं इनपुट, एन दे रहे हैं, रियर दे रहे हैं, फ्रंट दे रहे हैं, आइटम दे रहे हैं. ठीक है ना. लेकिन जब तुम सी कोड इसका लिखते हो सी फंक्शन, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या क्या उसको इनपुट दोगे. ठीक है ना. और कुछ वैल्यू तुम ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है. ओके. तो ये हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम, यहाँ से शुरू हो रहा है. तो अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्शन में पहले क्या करते हैं, पहला कंडीशन क्या होता है बताओ मुझे. पहला कंडीशन क्या बताओ मुझे. चेक करना कि क्यू फुल है या नहीं. हाँ फुल है कि नहीं. तो यहाँ पर मैंने क्या गलती किया बताओ, जेड लिखा है. नहीं, ये क्या होगा बताओ मुझे. N. क्या होगा. एन होगा. एन होगा. ठीक है. ओके. इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन प्रिंट ओवरफ्लो. ओके. समझ में आ गया ये वाला. उसका एल्स. एल्स में क्या करना है, रियर बढ़ाओ. सर्कुलर क्यू में कैसे रियर बढ़ते हैं, सेट रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 परसेंटाइल ऑपरेटर एन, है कि नहीं. देन सी क्यू रियर इक्वल्स टू आइटम. ओके. ये इंसर्ट कर लिए. और लेकिन हमें और भी एक काम करना है. अगर क्यू एम्प्टी है ना, क्यू एम्प्टी मतलब क्या, फ्रंट -1 होगा. इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 तो क्या करना है, उसको बढ़ाना है, एक बढ़ाना है. सेट फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉडल. समझ में आई ये वाला. Yes, sir. हाँ, दिस इज इंसर्शन एल्गोरिथम इन सर्कुलर. Okay, sir. मान लो कि हमें पता है, ग्लोबली हमने डिक्लेयर कर लिया ऑलरेडी एन का वैल्यू, साइज ऑफ क्यू. ठीक है. Okay, sir. ओके. तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू z + 1 mod n, देन प्रिंट क्यू इज सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो. ओके. रिटर्न एल्स में क्या करें, देखो फ्रंट इक्वल्स टू, इसमें फिर चेक करें, एल्स के अंदर फिर से इफ है. इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 देन सेट दिस फ्रंट इक्वल्स टू 0, रियर इक्वल्स 0. ओके. ये कर रहे हैं. और अगर ये फ्रंट -1 मतलब क्या है बताओ मुझे. सर्कुलर क्यू में फ्रंट -1 मतलब क्या है, एम्प्टी है. एम्प्टी है. अगर एम्प्टी है तो अगर एक एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो फ्रंट रियर दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, है कि नहीं. तो यहाँ 0 कर लिए. ठीक है ना. और अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट है ऑलरेडी, तो क्या करना है, सिंपल ऐसे रियर इक्वल्स रियर प्लस 1 mod n, देन क्यू रियर इक्वल्स टू आइटम. समझ में आया. Hello. हाँ बोलो. Sir, if front equal to -a, front equal to 0, हाँ also rear equals to 0. हाँ. Sir, this loop is executed and then again is line rear equal to rear plus 1 modulus n. नहीं, ये अलग है. ये इफ कंडीशन है, ये लूप नहीं है. इफ कंडीशन, Okay, sir. लूप नहीं है. ठीक है ना. ये खाली एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये -1 है कि नहीं. अगर -1 है मतलब कि एम्प्टी है, तो ये दोनों को 0 करके एक इंसर्ट कर लिए. ठीक है ना. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो एक ही कंडीशन होगा ना, फ्रंट -1 है कि नहीं. ये कब होगा, जब क्यू एम्प्टी है. अगर एम्प्टी नहीं है तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा. तो अगर ये एम्प्टी नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो किधर आएगा, इधर आएगा ना. अल्टीमेटली ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये -1 सर नहीं जब है. सेटिस्फाई होगा, हाँ. जब सेटिस्फाई होगा रियर 0 हो जाएगा. हाँ सर इस केस में भी वो लाइन रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉडुलस n पास का आएगा ना. सही बोल रहे हो. इसको एल्स कर लेते हैं. ठीक है. एल्स कर लेते हैं सर. ठीक है. अब ठीक है. ओके सर. गुड. अब समझ में आया ना. ये सर. ओके. तो ये हो गया. ठीक है. सो अगर ये होता है
तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होता है तो ये होगा, ठीक है ना। So if Q is not empty, then just implement the value of real, okay, and then Q real equals to item, okay. Yes, sir. Okay. So this is your insertion in a circular queue, and with this the time is also over, okay. I took the whole class, okay. So thank you. If you have any question, then you can ask me, otherwise I will end the class. Any question? No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.